أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے ہفتے ہم نے مدینہ بک 1 کا لیسن 5 کیا تھا، اس کا پہلا حصہ کیا تھا، اور اس پورے لیسن میں مرکب اضافی کی پریکٹس ہے. آج ہم اس کا بقیہ پارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں مرکب اضافی کو. مرکب اضافی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں. پہلا پارٹ مضاف کہلاتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ. مضاف بغیر ال کے اور بغیر تنوین کے ہوتا ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، جبکہ مضاف تینوں اعرابی حالتیں تبدیل کر سکتا ہے. وسعت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس کی وسعت ہم دیکھتے ہیں مضاف الیہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی وسعت ہم پہچانتے ہیں. اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو پھر ہم مضاف کو بھی نکرہ کنسیڈر کریں گے، اور اگر مضاف الیہ معرفہ ہے، معرفہ کی کوئی بھی قسم آ رہی ہے، تو ہم اسے پھر معرفہ ہی مضاف کو بھی کنسیڈر کریں گے. تو چلیے ہم پریکٹس سٹارٹ کرتے ہیں. نعیمہ جی آ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نعیمہ جی سٹارٹ کرتے ہیں. جی پڑھیے. اقرا واکتب مع الضبط اواخر الکلمات. جی اچھا، چونکہ اس میں ہم فعل استعمال کر رہے ہیں تو اس کی ہم آپ کو ترکیب تو نہیں بتائیں گے، آپ کو صرف ترجمہ اس کا بتا دیتے ہیں کہ پڑھیے اور لکھیے، اور جو آخری حروف ہیں ان کے اوپر آپ نے کلمات یعنی کہ اعراب لگانی ہے، مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. باب المدرستی. اچھا، اور آپ نے مجھے اس کا ترجمہ بھی بتانا ہے، اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کون سا مرکب بن رہا ہے. یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، جی اور ترجمہ کیجیے. مدرسے کا دروازہ. ٹھیک ہے، ویری گڈ. آگے کیجیے. ہمار الرجلی. اچھا، تو جب شدہ ہوتی ہے اگلے حرف کے اوپر تو پھر ہم پچھلے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں نا اس کو. ہمار الرجلی. نہیں، اچھا چلے اس کو ہم تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں. یہاں پر جی ہم نے پڑھا تھا کہ جس حرف کے اوپر شد ہوتی ہے الف لام کے بعد، جی وہ حروف شمسی ہوتے ہیں، ان جی کا جی لام نہیں پڑھا جاتا، ان کا لام جی نہیں پڑھا جاتا. جی اور جو بغیر شد کے ہوتے ہیں اور اب ان کا لام پچھلے پڑھا حرف کے جاتا ساتھ ملانے کی صورت میں پڑھا جاتا ہے. ہے. تو جی اب یہاں پر ہمارا یہ کون سا حرف ہے؟ حروف شمسی میں سے ہے یا قمری میں سے؟ شمسی میں سے. تو شمسی اس میں میں سے. آپ اس کو ڈائریکٹ اس کے ساتھ ملا لیں گے. ٹھیک ہے جی. ہمار جی الرجلی. ٹھیک ہے. جی. ترجمہ کیجیے. آدمی کا گدھا. ٹھیک ہے، جی. ویری گڈ. نیکسٹ کیجیے. بیتو حامدی. حامد کا گھر. اچھا، حامد دی ہوگا. یہ بتائیے مجھے آپ کہ حامد میم حامد منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ حامدین ہوگا. کیونکہ یہ منصرف اسما میں سے ہے. منصرف اسم ہے حامدین. جی میم. جی اچھا، ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ حامد کا گھر. ٹھیک ہے، نیکسٹ کیجیے. سیارت المدیری. پرنسپل کی گاڑی. ٹھیک ہے، ویری گڈ. نیکسٹ کیجیے. مندیلو عمار. نیم کے نیچے زیر ہے نا. مندیلو عمار. عمار کا رومال. جی عمار. ٹھیک ہو گیا. جی کیونکہ موسٹلی جو
मर्दों के नाम हैं वो हाँ जी, वो मुंसिफ अस्मा में से हैं। दूसरी कस्मों जी में से है। जी, अगला कीजिए। इस्मु तालिबी, हम्म, तालिब इल्म का नाम। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। बैतुल्ला, बैतुल्लाही, अल्लाह का घर। हम्म, ठीक। फी किताबिल्लाही, अल्लाह की किताब में से। जी, तो अब आप मुझे बताएंगी यहाँ पर कि ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है। मैम मैम, ये फी हरूफे जार है ठीक है, किताबिल्लाही। जी, तो ये मुरकब इजाफी। हाँ, देखें, ये मुरक्कब इजाफी है, जी ये था किताबुल्लाही। ठीक है, जी जी, एक्चुअली किताबिल्लाही। ऐसे था ये। तो हमने जी पढ़ा था कि मुजाफ किसी भी वजह से अपनी एराबी हालत तब्दील कर सकता है। जी तो अब फी हर्फ जारा की वजह से इसके ऊपर हमने पेश खत्म कर दी और उसके नीचे हमने जेर लगा दी। जी, अब किताबिल्लाही। इतने जी, इतने हिस्से को आप कहेंगी कि ये मुरक्कब इजाफी है, इतना हिस्सा। जी और ये जी मुकम्मिल अब जो बन गया, ये मुरक्कब जारी या शिबु जुमला। जी। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट कीजिए। वो भी इसी तरह से ये देखिए। मिन बैतुल हम्म, मुदर्रसी, हम्म, उस्ताद के घर में से। जी, तो आपने इसके एराब क्या लगाएंगी। मिन बैती कौन अल से हरूफ में मुदर्रसी। से है। मिन ये भी कौन से हरूफ हरूफ में से है। जार में से हरूफ है, बैतिल है, मुदर्रसी। ठीक है, ठीक है। तो इस मिन की वजह से बैतू जो था वो मजरूर हो गया। जी। अब ये कौन सा मुरक्कब बन गया। ये मुरक्कब इजाफी सारा, यानी कि बिन बैतिल मुदर्रसी पूरा ये मुरक्कब इजाफी, और मिन जो है वो हरूफ जार है, इसलिए। जी, मुरक्कब जारी कहेंगे या शिबु जुमला कहेंगे। ठीक है, चलिए ये अगला मुझे मिला। कीजिए। अला ये की मकतबिल मकतबिल मुदीरी, शाबाश, प्रिंसिपल के टेबल पर। ठीक है। तो जी, बताइए मुरक्कब इजाफी कहाँ तक है। ये मकतबिल मुदीरी मुरक्कब इजाफी, और ये अली ठीक है, के हरूफ जार में से, तो ये शिबु जुमला मुरक्कब इजाफी। शिबु जुमला खबर, ना बस शिबु शिबु जुमला हो गया ना। शिबु शिबु जुमला। जुमला खबर, हाँ जी। ठीक है? अगर जुमला इसमें में आएगा तो शिबु जुमला खबर बन जाएगा। जी ठीक है, जी, जज़ाकिल्लाह खैर, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की। अब हम जज़ाकल्लाह। और को बुलाते हैं। जी, मलिका रियाज जी, आप तशरीफ लाएं, अपना माइक ऑन हम्म। कीजिए। जी, चलिए हम शुरू करते हैं, पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है। इक़रा, पढ़िए। ठीक है, पहला जुमला पढ़िए। आइना बैतुल मुदर्रिसी, हम्म, मुदर्रिस का घर कहाँ है। अच्छा, इसमें आप मुझे बताइए मुब्तदा और खबर कौन सी है। आइना खबर मुकद्दम है, और बैतुल मुदर्रिसी मुरक्कब इजाफी बन के मुब्तदा। ठीक है, और आईना जो है कौन से हरूफ में अस्मा में से है। अस्मा इस्तिफ़हाम से। हम्म, तो अस्मा इस्तिफाम हमेशा कहाँ आते हैं। शुरू शुरू में। में आते हैं ना, जुमले के शुरू में आते हैं, सदारत चाहते हैं। और लेकिन हम्म, ये ज्यादातर इसमें से जो है वो खबर बनते हैं, तो इससे फिर हम खबर मुकद्दम कर देते हैं। और बैतुल मुदर्रिस की कौन सा अब मुरक्कब है। मुरक्कब इजाफी बन के मुब्तदा। ठीक है, शाबाश, क्या जवाब है इसका। हुआ बाइदुन, वो हम्म, दूर है। ठीक है, अब ये हुआ कि जो जमीर है किसकी तरफ जा रही है। मुदर्रिस की तरफ, अच्छा, के घर की आप तरफ। इसका मुझे इसका तर्जुमा दोबारा कीजिए, अभी आपको समझ आ जाएगी, कोई बात नहीं, तर्जुमा कीजिए। बैतुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस का घर। मैम, घर की तरफ लौट रही है जमीन। घर की तरफ लौट रही है। और हुआ क्यों आया है, क्योंकि क्योंकि बैतु वो मुजक्कर है या मुन्नस है। मुजक्कर है। मुजक्कर है, तो चीजों के लिए भी हम जमायर को इस्तेमाल करते हैं, उनके मुजक्कर और मुन्नस होने के अकॉर्डिंग हम उसी तरह की जमीर वहां पर ले आते हैं। अच्छा, हुआ बैतु में आप मुझे बताइए
کہ مبتدا اور خبر کیا ہے؟ ہوا مبتدا ہے، بعید اس کی خبر ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا کیجیے۔ القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ ترجمہ کی کیجیے۔ کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، اب بتائیے مبتدا اور خبر۔ القرآن مبتدا ہے، کتاب اللہ مرکب اضافی بن کے القرآن مبتدا ہے اور کتاب اللہ مرکب اضافی بن کے خبر ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہاں پر کیا پتا چلا کہ پہلے جملے میں ہم نے دیکھا کہ مرکب اضافی مبتدا بن رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا کہ مبتدا اور خبر دونوں بن سکتے ہیں، مرکب اضافی دونوں پوزیشنز جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ اگلا جملہ پڑھیے۔ الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر بتائیے۔ الکعبہ مبتدا ہے، بیت اللہ مرکب اضافی بن کے خبر ہے۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں گی کہ اس کے اوپر ال کیوں آیا؟ کیونکہ کعبہ جو ہے وہ ایک خاص چیز کا نام ہے نا۔ خاص عمارت کا نام ہے، ویسے کعبہ کا مطلب ہے چوکور، چورس بلڈنگ، چورس کو چار اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے چار کارنر ہوں جی اسے کعبہ کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے قبلہ کی بات کرتے ہیں، کعبہ بیت اللہ کی، تو پھر ہم اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر چونکہ جملے میں اس کو ہم نے خاص کیا کہ کون سا اللہ کا گھر ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کی بات ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کعبہ کو ہم ال کے ساتھ لے آئے۔ ٹھیک ہے، اگلا کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مبتدا اور خبر بتائیے۔ محمد مبتدا ہے، رسول اللہ مرکب اضافی بن کے خبر ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اب یہاں محمد تو تنوین کے ساتھ ہے، تو پھر ہم اس کو کیا سمجھیں گے، معرفہ یا نکرہ؟ میم یہ معرفہ ہی ہوگا کیونکہ یہ منصرف اسم ہے نا، تو اس پہ تنوین آتی ہے۔ کیونکہ یہ اس میں علم ہے، ٹھیک ہے، اس میں علم ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر جو تنوین ہے تو وہ بھی چلے گی۔ اچھا، اگلا جملہ جو ہے اس کو آپ صرف پڑھیے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ خرج المدرس من غرفة المدیر۔ اچھا، خرج چونکہ یہاں پہ فعل ہے اور فعل ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے، تو آپ صرف اس میں سے مجھے پہچان کر کے بتائیے کہ مرکب کون سا ہے۔ جی دو مرکب بن رہے ہیں نا اس میں، ایک تو ٹھیک ہے، مرکب بتائیے۔ جاری ہے اور ایک مرکب اضافی ہے۔ اچھا، پہلے کون سا ہے؟ پہلے مرکب جاری ہے، پہلے اگر غرفۃ المدیر کو دیکھیں تو یہ مرکب اضافی جی ہے، لیکن اگر پیچھے سے من کو بھی دیکھیں تو پھر یہ من جو ہے وہ حرف جر ہے اور غرفۃ المدیر اس کا غرفتی جو ہے جی وہ اس کا اسم مجرور ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ایسے چھوٹی اس سے شروع کرتے ہیں نا، کہ پہلے چھوٹی چیز کیا ہے پھر اس کو بڑی کے ساتھ ملاتے ہیں، پھر بڑی کے ساتھ، چونکہ آگے جب آپ لوگ انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتے جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم جملے میں لفظوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں مرکب اضافی سے پہلے حرف جارہ آ گیا، اب یہ پورا کا پورا شبہ جملہ بن گیا۔ اگلا جملہ بھی پڑھیے، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ مدرس یعنی کہ استاد پرنسپل کے کمرے میں سے نکلا، یا پرنسپل کے کمرے سے نکلا، ٹھیک ہے، چل اگلا کیجیے۔ ھذا بیت حامد وذالک بیت خالد، یہ ٹھیک حامد ہے، کا گھر ہے اور وہ خالد کا گھر ہے۔ اچھا، یہ ایک جملہ ہے یا ایک سے زائد جملے ہیں؟ دو جملے ہیں۔ پہلا جملہ کہاں تک ہے؟ ھذا بیت حامد تک پہلا جملہ ہے، وہ حرف ٹھیک ہے، عاطفہ ہے، اور ذالک بیت خالد دوسرا جملہ ہے۔ شاباش، ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیے ان دونوں جملوں میں مبتدا اور خبر۔ ھذا اس میں مبتدا ہے، بیت حامد مرکب اضافی بن کے خبر ہے، اور ذالک شاباش، جو ہے اس میں مبتدا ہے، بیت خالد مرکب اضافی بن کے خبر ہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، اگلا کیجیے۔ ابن عمار
तालिबुन व इब्नु यासिरिन ताजिरुन। अच्छा। अम्मार का बेटा तालिब इल्म है और यासिर का बेटा ताजिर है। अच्छा, इसे जरा दोबारा पढ़िएगा। वब्नु यासिरिन ताजिरुन और ठीक है। यासिर का बेटा ताजिर है। अच्छा, यहाँ आपने देखा इब्नु अम्मारिन में हमने इब्नु का हमजा जो है उसको एराब के साथ पढ़ा, लेकिन यहाँ पर हमने इब्नु का हमजा जो है उसको गिरा दिया है। तो आपको इसकी वजह मालूम है? मैम पीछे से मिलाकर पढ़ने की सूरत में हमज़ातुल वसल जो है वो गिर जाता है। जी, सिर्फ इब्नु का और इस्मु का, ये दो इस्म ऐसे हैं कि इनका जो हमजा है हमजातुल वसल है। मिलाने की सूरत में इसका हमजा कभी लिखा जाता है और कभी लिखा नहीं जाता और पढ़ा भी नहीं जाता। लिखने ना लिखने की सूरत में ये पढ़ा तो नहीं जाता, पीछे से मिलाएंगे, कहीं लिखा जाता है कहीं नहीं लिखा जाता। अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ हमजा इसका लिखा हुआ है लेकिन उसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, उसको पढ़ा नहीं जा रहा। ठीक है, इसी तरह से इस्मों के साथ जब बा हरफे जारा आ जाता है तो इसका हमजातुल वसल बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाता है, गायब हो जाता है। हम क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाही। जी बताइए, ऐसे ही पढ़ते हैं ना? जी मैम। तो इसमें भी आप देखें कि ये था इस्मुल्लाही, इस्मुल्लाही अल्लाह का नाम, लेकिन इससे पहले बा हरफे जारा आ गया तो इसका हमजातुल वसल ड्रॉप हो गया और इसके ऊपर जो जम्मा था वो कसरा की सूरत में लिखा जा रहा है और पढ़ा जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये याद रहेगा। ठीक है, अच्छा। जी अब आप मुझे बताइए इसमें मुब्तदा और खबर बताइए। इब्नु जी जी जी। मुब्तदा होगा। अच्छा, और खबर? अम्मारिन तालिबुन खबर। हाँ, कैसे आपने अमारिन और फिर तालिबुन कैसे बनाई है आपने खबर? खबर तो नहीं हमारी नहीं नकिरा होती है और इब्नु मारफा वो इब्नु हालत अम्मारिन रफा में होती है। जी। इब्नु अम्मारिन मुब्तदा होगा ये हम्म, पूरा इब्नु अम्मारिन तक। इसका तर्जुमा कीजिए इसका। अम्मार का बेटा। हाँ, देखिए ना, बात समझ में आ रही है ना? जी क्योंकि अगर हम कहते बेटा तालिब इल्म का अमार तो बात तो नहीं बनती ना। जी। ठीक, अच्छा, यहाँ पर तर्जुमा कीजिए। वब्नु इसका यासिरिन यासिर का बेटा। यासिर का बेटा, दोनों जगह पर मुरक्कब इजाफी मुब्तदा बन रहा है और तालिबुन और ताजिरुन उसकी खबर बन रही है। खबर ठीक बन है, गई। जज़ाकिल्लाह खैर, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने पार्टिसिपेट किया मलिका। अब आ जाए हमारे साथ जरीना जबीन, माइक अनम्यूट कीजिए। जी जरीना जी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जरीना जी, इस पेज पर भी जी हम मुरक्कब इजाफी की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जी मैम। चलिए जी पहला जुमला पढ़िए। जी। बैतुल मुदर्रिसी बैदुन व बैतुत ताजिरी करीबुन। ठीक है, तर्जुमा कीजिए। मुदर्रिस का घर दूर है, हम्म, ताजिर का घर नजदीक है, करीब है। अच्छा, वाव का तर्जुमा नहीं किया आपने। और जी मैम। जी, मुदर्रिस का अच्छा, घर दूर है और ताजिर का घर करीब है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बताइए मुझे इसमें कितने जुमले हैं? 2 जुमले हैं। ठीक है, तो बताइए कौन कौन से हैं? बैतुल मुदर्रिसी बैदुन एक जुमला है, बैतु ताजिरी करीबुन दूसरा जुमला है और वाव आतिफा है, शाबाश। हरफ आतिफा। अच्छा, आप जी मुझे मैम। पहले जुमले में बता दीजिए कि मुब्तदा और खबर क्या है।
बैतुल मुदर्रिसी मुब्तदा है, बैदुन खबर है। ठीक बैतुत हो गया। ताजिरी मुब्तदा है, करीबुन खबर है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी आप देखिए कि यहाँ जी बताया मैम, गया कि मुदर्रिस का घर करीब है, जी मैम, ताजिर का घर दूर है। दूर है जी। तो यहाँ नहीं, पर मुदर्रिस का घर अम, करीब है, ताजिर का घर करीब है, मुदर्रिस का घर दूर है। मुदर्रिस का घर दूर है, दूर है, जी, दूर है, और ताजिर का घर करीब है। तो नजदीक यहाँ करीब है। आपके पास, जी, यहाँ आप देख रही हैं कि आपके पास कुछ और भी सीखने को आ गया, और वो सीखने को क्या है? अपोजिट वर्ड्स। बैदुल जी ऑपोजिट मैम, वर्ड्स। वेरी गुड। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा सब। जी मैम, अच्छा, बैदुन करीबुन। जी। ठीक है। अगला जुमला कीजिए। हाजा मिफ्ताहु सैयारती, हम्म, गाड़ी की चाबी कहाँ है? नहीं नहीं, ठीक है, क्या ये, ठीक नहीं है। मैम, ये गाड़ी की क्या चाबी, ये गाड़ी की नहीं, चाबी है जी? नहीं, 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 ठहर जाए, ठहर जाए, ठहर जाए। दोबारा पढ़िए इस जुमले को, फिर पढ़िए। हाँ जी मैम, हाजा हम्म, मिफ्ताहु सैयारती, क्या ये गाड़ी जी, की चाबी है? नहीं, हाजा का तर्जुमा क्या करेंगी? क्या है हाजा ये? ये क्या, ये हाजा क्या ये, तो है ही नहीं कहीं पर। जी, क्या के लिए हाजा, कौन सा लफ्ज आप जी जी, इस्तेमाल कर रही आईना, हैं? जी हम्म, जी ठीक जी, है। अच्छा, ये, अब मुझे बताइए। जी, हाँ, तर्जुमा कीजिए पहले। ये गाड़ी की चाबी है। ठीक है, अब इसमें मुब्तदा और खबर बताइए। हाजा मुब्तदा है, मिफ्ताहु सैयारती खबर है। और कौन सा मुरक्कब मुरक्कब है? इजाफी, मुरक्कब इजाफी। ठीक, ठीक है। अगला जुमला पढ़िए। आईना मिफ्ताहुल बैती, घर की हम्म, चाबी कहाँ? कहाँ है? इसमें जी, बताइए मुब्तदा और खबर। आईना खबर मुकद्दम है, मिफ्ताहुल बैती मुब्तदा हम्म, मौखर है, और ठीक है, मिफ्ताहुल बैती मुरक्कब इजाफी है। ठीक है। अच्छा, अब देखें, यहाँ हमने मिफ्ताहुस सयारती को बना दिया खबर, मुरक्कब इजाफी खबर, जी मैम, मुरक्कब इजाफी होकर खबर, और यहाँ हमने मिफ्ताहुल बैती को बना दिया मुब्तदा। मुब्तदा, जी मैम, ठीक है ना? फिर एक दफा जी दोहरा मैम, लेते हैं कि मुरक्कब इजाफी दोनों पोजीशंस पर आ सकता है, मुब्तदा भी मुब्तदा बन भी बन सकता है सकता है और और खबर खबर भी। भी बन सकता है। जी जुमला मैम, इस्तेमाल। वेरी गुड, चलिए अगला कीजिए। जी मैम, मन जी। आंता या वलदु, हम्म, ऐ ऐ लड़के हम्म, तू कहाँ, तू कौन है? तू कौन है? ठीक है, मुब्तदा और खबर बताइए। मन आन मन अंता। हम्म, मन अंता मुब्तदा है। अच्छा, ये पूरा मुब्तदा नहीं नहीं है। नहीं नहीं, मन आंता हम्म, खबर, खबर मुकद्दम है। थोड़ी देर के लिए समझ जाए कि ये है ही नहीं। जी जी मन जी अंता, तू कौन है? जी मैम, अब बताइए। मन खबर मुकद्दम है, आंता मुब्तदा मौखर। हम्म, अच्छा, तो हमने पढ़ा था कि मन मुब्तदा भी बन सकता है और खबर भी बन सकता है। जी जी तो फिर जी ये जी, शुरू में आया, तो आपने इससे मुब्तदा क्यों नहीं बनाया? ये बाद में आंता जमीर है ना मैम। हाँ, क्योंकि हमें इसके बाद कोई इसम मारफा मिल रहा है जो मुब्तदा बन सकता है, बन सकता है, तो जी इस मैम, वजह से फिर हमने मन को खबर मुकद्दम कर दिया। खबर मुकद्दम, अब जी मैम। आप, और ये जो है या वालिदू, इसको हम क्या कहेंगे? या को क्या कहेंगे? हुर्फ़े निदा, हरूफे निदा, हरफे निदा, और वलदू को मुनादा, मुनादा। तो जी मैम, ये जो है ना, इसका हम ऐसे जुमले में कोई भी स्टेटस नहीं बनाते, बस जी ये मैम, निदा मुनादा ही इसको कहा जाता है। और इसमें जब हम किसी से सवाल पूछते हैं ना, तो फिर हम उसको निदा मुनादा को आखिर में ले जाते हैं, जी मैम, और जब हम वैसे किसी को मुखातिब करके बात कर रहे होते हैं, तो फिर हम निदा मुनादा को शुरू में ले आते हैं। तो दोनों जी जगह पर आने से जुमले के तर्जुमे में कोई फर्क नहीं पड़ता। जी मैम, ठीक है, चलिए जी अब मैम। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए इसका। अना इब्नु अब्बासिन, हम्म, वो अब्बास, हम्म, अना, अना किसको कहेंगे? अना मैं, वो मैं, ये मैं, जी मैम, मैं, जी,
इब्नु अब्बास अब्बासिन। अब्बास का बेटा हूँ। हाँ, अच्छा। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर हमने इब्नु का हमज़ा क्यों नहीं पढ़ा? जब मिलाकर पढ़ते हैं तो हमज़तुल वसल यो उसको ये गिर जाता है। हाँ, इब्नु का हमज़ातुल वसल गिर जाता है। मैंने जी इसलिए दोबारा पूछा कि हमें अच्छी तरह से ये ज़ेहन-नशीन हो जाए, हमें याद हो जी जाए कि जी इब्नु का हमज़ा हमज़तुल वसल होता है और वसल वसल जी का मैम। मतलब होता है मिलाने वाला। तो जब होने पिछले वाला हरफ से मिलाते हैं, तो इसका हमज़ा जो तो है वो पढ़ा नहीं गिर जाता। जाता ठीक है? जी मैम। गिर जाता है। ठीक हो गया। अगला भी जुमला कीजिए। वब्नु मन हुआ, हुँ, वो वो वब्नु बेटा, वो बेटा किसका है? वो बेटा कौन है क्या? हाँ, किसका है भी ठीक है। हुवा इब्नु खालिदुन, वो खालिद का बेटा है। हुँ, अब इसमें मुझे मुब्तदा और खबर बताइए, वब्नु इस जुमले में। हुआ हुँ, मुब्तदा है, मुब्तदा मौक़र है। वब्नु हुँ, ठीक है। वब्नु मन देखिए खबर मुक़द्दम है। इसका हम तर्जुमा कैसे करेंगे? मन किसका? इब्नु जी मैम, बेटा, बेटा जी। किसका बेटा? तो फिर ये कौन-सा मुरक्कब बना? मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी, क्योंकि मुरक्कब इज़ाफ़ी की क्या पहचान है जब हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं? तो का उसमें का, के, की का इस्तेमाल हो जाता है, जी ठीक है? मैम, तो अब जी मैम। यहाँ हमने देखा कि मन जो है वो मुज़ाफ़ इलैह की जगह के ऊपर भी आ सकता है, जी, ठीक है? चलो, जी अच्छा मैम। यहाँ बताइए मुब्तदा और खबर क्या है? हुआ मुब्तदा है, इब्नु खालिदिन खबर हुँ, है। मुरक्कब खबर है, इज़ाफ़ी वेरी बन के जी। जी, शाबाश। लास्ट भी जुमला कर लीजिए। आइना मस्जिदु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुँ, रसूलल्लाह ये हुँ, रसूलल्लाह की मस्जिद कहाँ है? ठीक है, मुब्तदा और खबर बताइए। आइना आइना खबर मुक़द्दम मस्जिदु रसूलिल्लाहि मुब्तदा मौक़र। अच्छा, तो अब मुझे बताएँगी कि ये 3 लफ्ज़ लिखे हुए आ रहे हैं, तो ये कौन-सा जी मुरक्कब मैम। बन रहा है? मुरक्कब पेचीदा इज़ाफ़ी। पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी। जी, तो आप जी मुझे मैम। बताएँगी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह कौन-सा है? जी मैम। मस्जिदु मुज़ाफ़ है, रसूल उसका मुज़ाफ़ इलैह है, रसूल मुज़ाफ़ है, अल्लाही उसका मुज़ाफ़ इलैह है और अ, ये बीच में दोनों बन सकता है, रसूल मुज़ाफ़ भी बन सकता है मस्जिदुन के लिए और हुँ, अल्लाह के लिए मुज़ाफ़ इलैह भी बन सकता है। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ हमने देखा कि चूँकि इसकी सेंटर वाले इस्म की दोनों बन इराब सकते हैं। जी, हल्की वो दोनों जी बन मैम। सकते हैं और इसकी हम जी, पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान हम ऐसे करेंगे कि ये हल्का होगा, सेंटर वाला, जी मैम। ठीक है? बगैर अल के और बगैर तनवीन के। जी मैम। इसकी इसकी पूरी जो सूरत है, वो इस मुज़ाफ जैसी ही होती होगी, है। जी मैम। ठीक है? तो जी, दोनों पहला और दूसरा दोनों इराब में जो है वो उनका इराब चेंज होगा, हल्का लेकिन होगा, दोनों हल्के हल्के होंगे। होंगे, जी मैम। ठीक है? तो इससे हमें ये समझ आती है कि ये पेचीदा मुरक्कब है इज़ाफ़ी, जी मैम। ठीक है? जी, अच्छा, अब इसका जवाब भी दे दीजिए। जी मैम। हुआ फिल मदीनतिल मुनव्वरा थी। हुँ, वो जी, मदीना मुनव्वरा में है। अच्छा। तो आप यहाँ पे ये मदीना तिल मुनव्वरती को क्या बना रही हैं? ये मुरक्कब तौसीफ़ी मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी की पहचान बताएँगी? दोनों के स्टेटस सेम रहते हैं मैम, चारों इस हुँ, लिहाज़ चारों लिहाज़ से दोनों का स्टेटस सेम होता है, शाबाश। और फ़ी यहाँ पर क्या है? हुर्फ़ जर है। हर्फ़े जार है। तो हर्फ़े हुर्फ़ जारा का जर इफ़ेक्ट किसके ऊपर क्या आया? मुरक्कब इज़ाफ़ी वो के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आया? वो मजरूर कर दिया। मजरूर कर दिया। तो जब हमारा मौसूफ़ मजरूर होता है, तो तो उसका मौसूफ़ की वजह से ऑटोमैटिकली उसकी मजरूर सिफ़त हो भी गई, मजरूर, मजबूर हो गई। जी मैम। ठीक है? जज़ाकिल्लाह जी मैम। खैर। भैया की जी, समीना जी, माइक अनम्यूट कीजिए।
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاذہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جی سمینا جی پہلا جملہ پڑھیے. اس پہ بھی بنتو. ہم وہی پریکٹس کریں گے مرکب اضافی. جی اوکے. بنتو حامد فی المدرستی و بنتو محمد فی الجامعتی. ٹھیک ہے, ترجمہ کیجیے. حامد کی بیٹی مدرسے میں ہے اور محمد کی بیٹی جامعہ کالج میں یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے, جامعہ بھی کہہ سکتی ہیں اور کالج یونیورسٹی بھی کہہ سکتی ہیں. اچھا, اوکے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کتنے جملے ہیں. 2 جملے استاذہ. جی بتائیے. بنتو حامد فی المدرستی ایک جملہ ہے, واو حرف عطف ہے, اور بنتو محمد فی الجامعتی دوسرا جملہ. ٹھیک ہے, اب اس میں مبتدا اور خبر بتائیے. بنتو حامد مبتدا ہے, مدرستی کون سا خبر. مرکب ہے, کون سا بنتو مرکب حامد ہے. مرکب اضافی, مرکب اضافی, ٹھیک ہے. فی حرف جر, ہوں المدرستی خبر. اچھا, یہ پورا ہی خبر بن جائے گا نا, کیونکہ فی کی وجہ سے حرف جار نے اپنے بعد والے اسم کو مجرور کر دیا. جی جی ٹھیک, تو جی یہ شبہ جملہ خبر بن گیا, جی یہ شبہ خبر ہو جملہ. گیا. اور یہ مرکب اضافی مبتدا بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اگلا پارٹ کیجئے اس کا. بنتو محمد مبتدا, فی ہوں حرف جارہ الجامعتی تو شبہ جملہ خبر. جی ٹھیک ہو گیا. اس میں بھی کتنے مرکب آ گئے. 2 مرکبات ہیں. 2. ٹھیک ہے, اگلا کیجئے. اسم المدرسی سعید و واسم المہندسی خالد. ٹھیک ہے. ہوں مدرس کا نام, استاد کا نام ہوں سعید ہے اور ہوں انجینئر کا نام خالد ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں کتنے جملے ہیں. اس میں بھی استاذہ 2 جملے ہیں. ہوں پہلا اسم المدرسی سعید, واو ٹھیک ہے. حرف عطف, اور اسم ہوں المہندس خالد دوسرا ہوں جملہ. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں مجھے مبتدا اور خبر بتا دیجئے. اسم المدرسی مرکب اضافی ہو کر مبتدا, سعید ہوں خبر. ٹھیک ہے. اسم اور دوسرا جملہ. المہندس اسم المہندسی مرکب اضافی مبتدا, خالد خبر. ہوں ٹھیک ہے. اچھا, ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ اسمو اور ابنو کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. جی تو آپ دیکھیں یہ یہاں پر آ گیا. جی وسمو, وسم. واؤ کے ساتھ ہم نے اس کو ملایا تو اس کا حمزۃ الوصل لکھا جا رہا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا. جی ٹھیک ہے, تو یہ آج اچھی طرح سے ہمیں دونوں باتیں یاد ہو گئی انشاءاللہ تعالی. جی. ٹھیک ہے. اچھا, اگلا جملہ کیجئے. طالبی غنی, طالب علم کے چچا ہوں غنی یا امیر ہیں, رئیس ہیں. امیر, جی جی, امیر ہیں, رئیس ہیں, مالدار ہیں, دولت مند ہیں, آپ کچھ بھی جی اس کے ساتھ ترجمے کر سکتی ہیں کسی جی. بھی معنی کے ساتھ. اچھا, مبتدا اور خبر بتائیے اس میں. طالب مرکب اضافی ہو کے مبتدا ہے. طالبی نے اعراب دھیان سے بولیے. جی جی. ہوں طالبی ہوں مرکب اضافی ہو کر مبتدا بنے گا, اور غنی خبر, غنی خبر. ٹھیک ہے. اگلا کیجئے. باب المسجد مفتوح و باب مدرستی مغلق. ٹھیک ہے. 2 جملے ہیں. باب المسجد مفتوح پہلا جملہ, واو ہوں حرف عطف, باب ہوں المدرستی مغلق دوسرا جملہ. ٹھیک ہے, شاباش. چلیے, اب اس کی مبتدا اور خبر بھی بتا دیجئے. جی. باب المسجدی مرکب اضافی ہو کر مبتدا بنے گا, مفتوح خبر.
ठीक है, अगले बाबुल जुमले में। मद्र जी जी बाबुल जी। मदरसती मुरक्कब इजाफी होकर मुब्तदा मुगलकुन खबर। हम्म, अच्छा, अब आपने कहा मस्जिद का दरवाजा खुला है। मदरसे का दरवाजा बंद जी, तो यहाँ हमें कौन से वर्ड ऑपोजिट सीखने को मिले? है। जी मफ्तूहुन मुगलकुन, खुला हम्म, और बंद। जी शाबाश, जज़ाकल्लाह खैर। चल आइए अगला भी कीजिए। खालू हामिदिन फकीरुन, हम्म मामू हामिद के मामू हम्म, गरीब हैं। ठीक है। अच्छा, आ, मुब्तदा और खबर बताइए। खालू हामिदिन मुरक्कब इजाफी होके मुब्तदा फकीरुन खबर। ठीक है, चलिए अब इसमें भी देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ था। हाँ, गनीयुन फकीरुन हम्म, वेरी गुड, सही पहचाना आपने। मालदार और गरीब, गरीब। दो तीन हमने वर्ड ऑपोजिट सीख लिए हैं अब तक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी नेक्स्ट कीजिए। सय्यारतु अब्बासिन फिशारी, हम्म, अब्बास की गाड़ी रास्ते पे है, हर सड़क पर है। रास्ते में है, हम्म इशारे पर रास्ते में। तो हम्म, सय्यारतु अब्बासिन मुब्तदा हुआ मुरक्कब इजाफी होकर ठीक है, फिशारी शिबू जुमला खबर, क्योंकि हर्फ जर। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें हमने अल क्यों नहीं पढ़ा, लिखा हुआ है। बिकॉज हर्फ हर्फ शमसी है इसके लिए। हाँ, क्योंकि ये हरूफे शमसी है, और हरूफे जी शमसी की पहचान क्या है? अ, अ, अल के अ, बाद शद्दा आता है। शद्द आता है। वेरी गुड। नेक्स्ट कीजिए। इब्नु मन अंता, हम्म, अना इब्नु मन अंता, अ, तुम किसके बेटे हो? ठीक है। अना इब्नुल अनबनुल अनबनुल। अनबनुल मुदर्रिसी, हम्म, मैं मुदर्रिस का बेटा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मुझे बताइए मुब्तदा और खबर पहले जुमले में। अंता मुब्तदा मौखर होगा उस्ताद। जी, ठीक है। इब्नु मन खबर होगी। खबर होगी, ठीक है, बिल्कुल। जी उस्ताद। जी जी उस्ताद। जी, ये हमारा लास्ट जुमला रह गया था। जी अनबनु अनबनुल मुदर्रिसी, सो अना मुब्तदा, इब्नुल मुदर्रिसी खबर, जी, मुरक्कब इजाफी होके खबर बने। ठीक है। अच्छा, ये लास्ट वाला जुमला पढ़िए। आइनल कल्बु, कल्बु मतलब कुत्ता कहाँ है? ठीक है। हुआ तहत सय्यारती, वो हम्म, गाड़ी के नीचे है। जी, ठीक है। तो इसमें मुब्तदा और खबर बताइए पहले जुमले में। आइना आइना मुब्तदा कल्बु खबर। जी, नहीं, आईना मुब्तदा कैसे बनेगा? उस्ताद इसमें मुझे बड़ा कंफ्यूज होता है, ये आईना मन इसमें मुब्तदा कब बनता है? हाँ, देखें ना, इसमें हमने क्या देखना होता है। आईना के बाद जो आने वाला इस्म है वो मारफा होता है। मारफा, जी जी जी। सो अल कल्बु मुब्तदा बनेगा, आईना खबर होगी। हम्म, जी। जी अच्छा अच्छा, हम इसको कौन सा जुमला कहेंगे? इस जुमला इस्तिफाम होगा उस्ताद। जी, ये जुमला है इस्तिफामिया कहलाएगा। जी ठीक है। अच्छा, जी जुमला इस्मिया इस्तिफामिया। ओके।
अब इसका because जवाब aina दीजिए ism जी, हुआ क्योंकि हुआ tahta sayyarati वो मुब्तदा खबर बताइए। हुआ मुब्तदा tahta sayyarati खबर। ठीक है। अच्छा, ये भी मुरक्कब इजाफी ही बनता है, इसकी कंस्ट्रक्शन उसी तरह की होती है, लेकिन इसको हम कहते हैं ज़र्फ। ये हाँ अभी जी हम आगे 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 जाकर पढ़ेंगे। ठीक जी, है। ज़र्फ तो मकान ये हाजिर। जी ये जो है खबर की जगह के ऊपर आता है, मुब्तदा कभी नहीं बनता। ज़र्फ कभी भी मुब्तदा की पोजीशन नहीं लेता। ठीक है, ओके बस ओके अभी आपने ये याद रखना जी जी उस्ताद। है जी। जज़ाकिल्लाह खैर। हम नेक्स्ट किसी को कॉल करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने बताया जी। ईमान जी आप आ जाइए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ईमान जी पढ़िए। ये मैम ऊपर का ये भी पढ़ना है, कौवन जुमलन वैसे कौविन अरबिया पढ़ दें, इसकी पढ़ दें। कौविन जुमल, लेकिन मुझे इसका तर्जुमा नहीं आता। हाँ, क्योंकि ये फेल इस्तेमाल हुए हैं, फेल अभी हमने पढ़े नहीं है, तो फिर जी आप ऐसा करें कि ये इंग्लिश में पढ़िए। जी हम्म, पढ़िए। जी मैम। पढ़िए। मेक सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। क्या तर्जुमा करेंगे? जी तर्जुमा सेंटेंस बताइए। बनाएंगे मैम। खाली जगहों को जी जी जुमले बनाइए, खाली जगहों को पूर करते जी हुए। जी ठीक है। अच्छा, अब जी यहाँ पर आपने कुछ भी आपको जो भी लगे लफ्ज इस्तेमाल करना आपकी चॉइस है, आप कर सकती हैं। जी ठीक है, जी। चलिए पहला जुमला पढ़िए। बाबुल बैती मुगलकुन, घर के दरवाजे बंद है। अच्छा, तो बाबू वाहिद है या जमा है, ये बताइए। वाहिद है मैम। वाहिद है, तो फिर हम क्या तर्जुमा करेंगे? बाबुल बैती। घर का दरवाजा, सॉरी मैम, घर का दरवाजा ठीक है बंद ना। है। हाँ, जी के जी जमा के लिए आता है, का जी की वाहिद के लिए आता है। ठीक जी है, जी चलिए। जी मैम। अच्छा, घर का दरवाजा बंद है। बंद है। ओके, नेक्स्ट कीजिए। आईना आईना मिफ्ताहुस सैयारती, गाड़ी। ठीक है, जी जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है ईमान। जी मैम, आईना मिफ्ताहुस सैयारती, गाड़ी की चाबी कहाँ है? ठीक है, अगला जुमला कीजिए। मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाही, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ठीक है, अगला कीजिए। बैतुत तबीबी बईदुन, ठीक। डॉक्टर का घर दूर है। ठीक है, अगला अल कीजिए। कुरान अल कुरानु किताबुल्लाही, कुरान अल्लाह हम्म, की किताब है। ठीक है, अगला कीजिए। खदीजतुब्नु हामिदिन, खद सही है मैम, खदीजत नहीं, गलत है। हामिद। हाँ, इब्नू तो बेटे को कहते हैं ना, जी तो आपने मुरक्कब इजाफी बनाना है ना यहाँ पर। जी। हम्म, इब्नी नहीं बन नहीं, यहाँ बनेगा, क्या? यहाँ बनेगा। मुरक्कब इजाफी इधर बनेगा, देखे ना, क्योंकि यहाँ हमारे पास हामिदिन मजरूर है, तो जी इसका जी। मतलब है कि हामिद के साथ आएगा। और यहाँ क्या आएगा? ये मुन्नस है ख- कि मुजक्कर है? ये तो मुजक्कर है। नहीं, खतीजा क्या है? खदीजा मुअन्नस है मैम। तो फिर खतीजा से मुतल्लिक यहाँ कोई आएगा ना, रिलेशन मुन्नस जी आएगा ना, कि हामिद की जी कौन है खतीजा? खतीजा हामिद की कौन है?
बेटी तो बीवी है, बेटी है, बहन है। उक्ति बोल सकते हैं मैम, उक्ति। जी बोल सकते, उख्तू आएगा, उख्तू। खदीजतु हम्म। उक्तु हामिदिन। क्योंकि इसको उख्ती हम इसलिए नहीं कर सकते कि यहाँ पीछे तो कोई वजह ही नहीं है ना जी इसके जी मजरूर होने की। तो मुजाफ तो किसी वजह से मजरूर होगा ना। जी ठीक है, ओरिजिनल हालत उसकी रफाई होती है। ठीक जी। हो गया। अगला जुमला पढ़िए। अना, ये अना मैं कौन हूँ मुदर्रिस का। अब बेटा, यहाँ देखें, अब इब्नु। ये बात ये याद रखिए, अना मुजक्कर मोनस दोनों के लिए आता है। जी। अब यहाँ आप कुछ भी बना सकती हैं। अना इब्नुल मुदर्रिसी, हम्म। मैं ठीक है, टीचर और का यहाँ, बेटा हूँ। और अगर हो कि मैं टीचर की बेटी हूँ, फिर क्या होगा। बना बना यानी नहीं, नहीं, बिनती बिनती। बिनती नहीं, बिन्तु। जी मैम, बिंतु, अना बिंतुल मुदर्रिसी। ठीक हो गया। अगला जी। कीजिए। कलमुत तौलिबी मकसूरुन, हम्म। ठीक तालिब है, इल्म का कलम टूटा हुआ है। ठीक है, अगला कीजिए। बाबुल मस्जिदी मफ्तूहुन, मस्जिद का दरवाजा खुला है। ठीक है, आगे कीजिए। खरजल खरजल मुदर्रिसु मिन गुरफतिल हम्म, मुदीरी, टीचर निकले प्रिंसिपल के कमरे से। ठीक हो गया। माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने। जजाकिल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। समीना जी, आ जाइए। जी उस्ताद। जी, यहाँ भी आपने जो है करेक्ट फ्रेजेस लगाने हैं, यानी कि जुमले को आपने दुरुस्त करना है। और देखिए क्या आएगा यहाँ पर। चलिए, इस जुमले को आपने, इसकी तरतीब को ठीक करना है। इसमें क्या जो है वो गड़बड़ हुई है, वो आपने बताना है। कीजिए। अल कलम तालिबी, हम्म। तो अल कलम तालिबी होगा उस्ताद। अच्छा, आप इसको क्या बनाएंगी। तालिब इल्म का कलम। तालिब इल्म का कलम, तो फिर क्या होगा। अल कलम तालिबी। तो आप मुरक्कब इजाफी बना रही हैं ना। जी। तो मुरक्कब इजाफी में तो शुरू में क्या आता है। अल आता है। अल अल नहीं आता है, बिल्कुल। कलम तालिबी, तो उस्ताद हम्म। अगर ये अतालिबी है तो मीम पे जबर नहीं होगा, राइट, पेश ही होगा। मीम पर पेश ही होगा, क्योंकि हमें इससे और इससे मालूम हो रहा है कि पीछे हर पे जा रहा तो है ही नहीं ना। क्योंकि जी जी किसी भी किस्म के मजरूर होने की सिर्फ दो सूरतें हैं। ठीक है। जी एक सूरत जी क्या है कि हरफे जारा आ जारा। गया, जी उसके बाद इस्म मजरूर, और जी। एक मुजाफ इलैही की, मतलब मुजाफ इलैही की जो पोजीशन है पोजीशन वो मजरूर। मजरूर होती है। जी बस, जी। एक्चुअली ये दो सूरतें हैं। तो ओके। आपने देखा कि अल कलमू तो इस्म है, हरफे जारा तो है ही नहीं। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारा जो है ना, इसको हमने मुजाफ बनाना है तब्दीली करके। ओके ओके। जी, सो हम्म। कलम तालिबी। हम्म, तो ये हो जाएगा कलमु कलमु तालिबी, ऐसे करके आ कलम जाएगा। तालिबी। उसका जो अल है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है। जी जी। नेक्स्ट पढ़िए। बाबुस, ओके। बिन बिन्तु हामिदिन। जी, पहले जो लिखा हुआ है ना उसे पढ़िए, फिर इसकी ओके। करेक्शन की। जी उस्ताद। जी। बिन्तु हामिदुन, तो हम्म। इसका होगा बिन्तु हामिदिन। आप मुझे बताएंगी पहले कि गलती क्या है। ओके।
बिन्तु हामिदुन में तनवीन है जो रफा में है, तो ये मजरूर होगा फिर। ठीक हो गया। तो बिन्तु हामिदिन, तर्जुमा बताइए। हामिद की बेटी। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। इस्मुल वलदा, तो हम्म इसका बनेगा इस्मुल वलदी। क्या गलती है इसमें? जबर है, रफा में है, तो वो मजरूर होगा, जेर होगा, कसरा। ठीक है, और तर्जुमा क्या करेंगे हम इसका? बेटे का नाम, लड़के का नाम। लड़के का नाम, लड़के का नाम। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। बाबुन, बाबुन हम्म अस्सैयारती, तो हम्म इसमें बाबुन की बजाय बाबुस सैयारती होगा। ठीक हो गया, वेरी गुड। आ, और क्या तर्जुमा गाड़ी का, करेंगे? गाड़ी का दरवाजा। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। रसूलुल्लाही, जी बताइए। तो इसमें भी अल निकल जाएगा उस्ताजा, रसूलुल्लाही। ठीक है, और तर्जुमा क्या करेंगे? अल्लाह के रसूल, अल्लाह का रसूल। ठीक है, शाबाश, आखिरी भी कर दीजिए। इब्नुल मुदर्रिसी, हम्म मुदर्रिसिन, तो हम्म इसमें इब्नुल मुदर्रिसिन, मुदर्रिसी होना चाहिए उस्ताजा। जी बिल्कुल ठीक, क्योंकि हम्म, अल और तनवीन अल इकट्ठे के नहीं आ साथ सकते। तनवीन नहीं होती, बिल्कुल। हम्म तो इब्नुल मुदर्रिसी, और तर्जुमा क्या करेंगे? मुदर्रिस का बेटा, बेटा। उस्ताद का ठीक, बेटा। ठीक हो गया, माशाल्लाह। अच्छा, इसे भी पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है? मोहम्मदुन, मोहम्मदुन, और उससे आगे क्या लिखा हुआ है? या मोहम्मदू। अच्छा, इसमें क्या फर्क है? यहाँ तनवीन के साथ है, यहाँ बिना तनवीन के है। उस्ताजा हर्फ निदा या आया है, इसकी वजह से ये यहाँ पे तनवीन नहीं है। या मोहम्मद, वो हल्का हो जाता है तनवीन। हल्का हो गया, बिल्कुल सही। जब भी किसी इस्म के साथ हरफ निदा या आ जाता है तो वो इस्म हल्का हो जाता है। ठीक जी है, जी अच्छा। और अगर या आ जाए मुजाफ इलैह से पहले, तो फिर मुजाफ इलैह तो पहले ही हल्का होता है, जी। तो फिर ये मंसूब हो जाता है। ओके, मंसूब हो जाएगा। अच्छा, ये नेक्स्ट भी पढ़िए। उस्ताजुन, हम्म या उस्ताजु, ठीक है। हर्फ निदा आया तो यहाँ भी उस्ताजुन की तनवीन हल्की होके उस्ताजु हो। अच्छा, तो अब या उस्ताजू का तर्जुमा क्या करेंगे? ए उस्ताद। है उस्ताद, ठीक है। अगला भी पढ़िए। खालिदुन, या हम्म खालिदु, दोबारा ठीक है, तनवीन हल्की होके खालिदु हो गया, तो ए खालिद। ठीक है। अगला भी पढ़िए, लास्ट पढ़िए। वलदुन, या वलदु, हम्म दोबारा हम्म तनवीन हल्की होकर या वलदु, वलदु हो गया, वलदुन से। सो ठीक ए है, और वलद, तर्जुमा? ए बेटे, ए नहीं, लड़के, है ए लड़के। लड़के। है लड़के, जी ठीक है। अच्छा, इसकी छोटी सी एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस, वो मैं आप ग्रुप में दूंगी, आपने वहां पर करनी है, ठीक है? जी उस्ताद, जज़ाकिल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर उस्तादा। बारकल्लाह फीकी। जी जी, जरीना जी, आप आइए। जी मैम। जरीना जी, चलिए, हाँ बताइए, इसे पढ़िए। यहाँ हमने क्या करना है कि यहाँ एक जो है वो मिसाल हमारे पास दी गई है, इसे हमने पढ़ना है और इसके मुताबिक हमने इन तस्वीरों को देखकर जुमले बनाने हैं। जी मैम। ठीक है, चलिए पढ़िए पहला जुमला। किताबु मन हाजा। हम्म
क्या तर्जुमा करेंगे आप इसका? किताबु मन हाजा। हाजा, ये किताब कहाँ है? नहीं, मन का तर्जुमा क्या होता है? कौन? हम्म कौन, किसकी? तो जी, किताबु ये मन यहाँ पर क्या बनेगा? ये किताब किसकी है जी मैम? मुरकब इजाफी। ये किताब किसकी है? जी, मुब्तदा और खबर बताइए। मुब्तदा किताबो है, मन खबर है। ठीक है, चलें आप इसका, ये कौन सा जुमला हुआ? इसको हम क्या कहेंगे? जुमला इस्मिया, जी मैम, इस्तफामिया। इस्तेफामिया, जी मैम, जुमला इस्मा इस्तेफाम। इस्तफामिया, ठीक है। जी, ठीक हो गया। अच्छा, जवाब भी दे दीजिए, किसी का भी नाम ले लें, किताब किसकी है? कैसे जी, जवाब देंगे? हाजा खालिदुन। नहीं, हाजा, हाजा किताबु खालिद है। मन की जी जगह जी, नाम ले आएंगी ना, हाँ हाँ जी, मन की जगह हाँ नाम आ जाएगा। जी और जी, जवाब देंगे तो जो इशारा है वो वो पहले शुरू में आएगा। आ जाएगा। जी ठीक। अच्छा, जी मैम, हाजा अब ये किताबु देखिए। खालिद। जी मैम, हम्म ठीक हो गया। ये बताइए किस चीज की पिक्चर है, क्या बना हुआ है ये? पेन, कलमुन। कलम। चलिए सवाल बनाइए इसी तरह से, इसी पैटर्न पर। जी जी इसको मैम, रख दीजिए कलमु किताबों की मन। जगह। जी मैम, शाबाश, ठीक है। हाजा दोबारा से कलम। बोलिए। नहीं नहीं, पहले ये सवाल कलम। बोलिए ना। जी जी, हम्म कलमु मन बोलिए। हाजा। ये जी, कलम किसका है? कलम मन हाजा, ठीक है, ये जी, कलम किसका है? किसका है? अच्छा, इसमें आप मुब्तदा और खबर किसको बनाएंगी? हाजा मुब्तदा है, कलम, हम्म कलमुन मन खबर है। कलम मुन नहीं होगा, कलमू कलमु, होगा। जी जी, कलम, जी, जी मैम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जवाब भी दे दीजिए। हाजा कलमु मोहम्मदिन। हम्म ठीक हो गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या किस चीज की मिफ्ताह, पिक्चर है? चाबी, मिफ्ताह। चाबी मैम, मिफ्ताह, जी मैम। ठीक। जी, मिफ्ताहु मन हाजा। ठीक है, ये चाबी किसकी है? ठीक है। हाजा मिफ्ताहु हम्म सईदुन। सही, तो ठीक हो गया, वेरी गुड। अगला भी देख लीजिए। घड़ी, स, साआतु। साअत, जी साअतु, साआतु। जी मैम, साअतु, हम्म जी मैम। साअतु मन हाजा। ठीक है। हा, हा मैम, अगर लड़की का मोनस का बनाने कराए तो हाजे ही लगाएंगे। हाँ जी, हाजे ही लगाएंगे, लेकिन अभी यहाँ हमने हाजा का इस्तेमाल ही करना। जी जी मैम, ठीक ठीक है। है। जी मैम, हम्म हाजा साअतुन हम्म जैद। नहीं, ठीक है ना। सातु तो मोनस है ना, तो हम इस जी इसकी वही। तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक हो गया। जी हाजे ही, हाजे ही, जी मैम, ठीक है। ये घड़ी किसकी है? जी मैम, ये किसकी घड़ी है? ये किसकी घड़ी? जी मैम, किसकी है? हाजिही साअतु, हाजिही हम्म साअतु जैनबू। हम्म, ठीक हो गया। जैनब, जैनबू चाहता जै- ना मैं। जैनबू, जैनबू जी आएगा, ठीक है। जी जी, अच्छा, ये भी कीजिए आप। जी मैम। इस्मुन, चलिए। जी, इस्मुन, इस्मुल इसमन। वलदी, इस्मुन हम्म नाम, इस्मुल ठीक है। वलदी लड़के का नाम, हम्म मोहम्मदुन, वास्मुल हम्म बिंतु बिनती जैनबू। ठीक है। दो जुमले हैं मैम इसमें। बताइए पहला जुमला कौन सा है? इस्मुल वलदी मोहम्मदुन, ठीक है। वाव हुर्फे अतफ, ठीक। इस्मुल बिनती जैनबू। हम्म मोहम्मद के लड़के का नाम क्या? नहीं, इसका इस्मुल, तर्जमा कीजिए ना, इसका तर्जमा कीजिए। हाँ, लड़के इस्मुल का नाम वलदी का, मोहम्मद है जी, लड़के का नाम मोहम्मद है। बिल्कुल ठीक हो गया। आगे कीजिए। लड़की का नाम जैनब है। ठीक है, मुब्तदा और खबर बताइए। दोनों में मैम, हाँ जी मैम। इस्मुल जी, वलदी मुब्तदा है, मोहम्मदुन खबर है। इस्मुल बिनती ठीक है, मुब्तदा है, जैनबू खबर है। ठीक है।
अच्छा, यहाँ कुछ फर्क आपको लग रहा है लिखे हुए का? ज़ैनबु मुबस्ता, ये है नहीं नहीं। नहीं ये देखे ना, इस्मुन का उन्होंने इस्तेमाल बताया है जी जी कि मैम हम जी। इस्मुन का अली इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। जी जी ठीक जी है, मैम जी मैम। उन्होंने मुज़क्कर के साथ भी इस्तेमाल करके बताया और मुअन्नस के और साथ भी। जी हम्म, ठीक है, इस्मुल हल्का हो गया, एक्चुअली वो जी मैम। तनवीन में था, मुनसरिफ अस्मा में से है। जब मुरक्कब इजाफी में मुजाफ की पोजीशन के ऊपर आया तो तो वो हल्का। हो गया जी। एक मिनट। अच्छा, जी अगला मैम। जुमला भी पढ़िए। इस्मुल मुदर्रिसी हामिदुन, हम्म मुदर्रिस का नाम हामिद है। हम्म मस्मुल आगे। मुदीरी, हम्म मस्मू मुद, मा मने नहीं, मुदीर क्या का नाम क्या क्या, क्या उसका नाम नहीं क्या, इसको करें ना पहले, इस्मुल मुदीरी, मुदीरी इसका का, तर्जुमा करें। इसका क्या, प्रिंसिपल का मुदीरी नाम प्रिंसिपल का नाम क्या है। क्या है? अच्छा, जी मैम। पीछे हमने जो है मन इस्तेमाल किया था। जी मैम। ठीक है, मन जी, किसके लिए आता है? आकिल के लिए, आखिर के लिए, माँ गैर आखिर के लिए। जी मैम। माँ गैर आकिल, क्योंकि अब यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है। बेशक मुदीर आकिल है, लेकिन जी उसके मैम। बारे में बात नहीं हो रही, उसका नाम पूछा जा नाम रहा है, इसलिए यहाँ पर आया कि माँ मस्मुल मुदीरी, प्रिंसिपल का नाम क्या है। क्या है। जी इस मैम। जुमले को हम कौन सा जुमला कहेंगे? जुमला इस्मिया। मुरक्कब अच्छा चलिए, इस्तेफामिया। जी जी, मुब्तदा और खबर बताइए। इस्मुल मुदीरी मुरक्कब इजाफी खबर है, ये मुब्तदा ठीक है, है, माँ खबर है। क्योंकि माँ माँ और मन मुब्तदा भी बन सकते हैं और खबर खबर भी बन खबर भी। सकते हैं। जी मैम। ठीक है, तो यहाँ ये जी मैम। बन सकता है खबर, क्योंकि अ, जो इसके आगे मुरक्कब इजाफी है वो दोनों पोजीशंस जी ले मैम। सकता है, तो यहाँ हम जी सिंपल मैम। तर्जुमा करते हैं। ठीक है, बस जी मैम। जी मुदीर मैम। का नाम क्या है। क्या है अब जी। इब्नुन का इस्तेमाल उन्होंने बताया है, कीजिए। इब्नुन बेटा, इब्नु खालिदिन फिल हम्म मदरसती, हम्म खालिद का बेटा मदरसे में है। ठीक है। वब्नु हामिदिन फिल जामियाती, हामिद का हम्म बेटा यूनिवर्सिटी में है। ठीक है, चले अगला भी पढ़ लीजिए। इब्नुल मुदर्रिसी फिल फसली, मुदर्रिस का हम्म बेटा जमात में है, क्लास में है। ठीक है, आइन अब्नु मुदीरी, अगला। मुदीर का बेटा कहाँ है, हम्म, प्रिंसिपल का बेटा कहाँ है। ये ठीक है, जी। इसमें बताइए मुब्तदा और खबर पहले जुमले में। ऊपर किसमें, इसमें इब्नुल मुदर्रिसी, ये मुब्तदा है मैम। इब्नुल मुदर्रिसी मुरक्कब इजाफी बनकर मुब्तदा बन रहा है। फिल फसली शिबो जुमला खबर। ठीक हो गया, और अगले जुमले में। आईना मुब्तदा मौकर, हम्म ये नहीं नहीं, खबर मुकद्दम, इब्नुल मुदीरी मुब्तदा मौकर। ठीक हो गया। अच्छा, इसको क्या जुमला कहेंगे हम? कौन सा जुमला है ये? जुमला कौन सा मैम, इस्मिया, ये जुमले इस्तेफामिया। जी मैम, मुरक्कब इजाफी इस्तिफामिया। इस्तेफामिया। जी नहीं, बस जुमला इस्मिया इस्तिफामिया। इस्तेफामिया। जी मैम। ठीक हो गया, जी जज़ाकल्लाह मैम। खैर, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की। अब हम जी किसी मैम। और को बुला लेते हैं, लास्ट पेज है हमारा। अच्छा, सुमीना जी आप आ जाए। जी उस्ताद। चलिए, लास्ट है हमारा पेज जी। पढ़िए। जी इन सेंटेंसेस को हमने पढ़ना है, और फिर हमने गौर करना है कि हमने हमजातुल वसल का इस्तेमाल किस तरह से किया है। वो प्रैक्टिस है जो पीछे हम करके आए हैं, उसी की जी मजीद उन्होंने प्रैक्टिस बता दी है। बस आपने इसको पढ़ना है
اور ترجمہ کرنا ہے. پڑھیے. ابن ہوں محمدin فی ہوں العراقی وابن ہوں حامدin فی الہندی. ٹھیک ہے. محمد کا بیٹا عراق میں ہے اور ہوں حامد کا بیٹا ہند میں ہے. ہوں یہاں ہند سے مراد انڈیا، ہندوستان. انڈیا، ہندوستان ہے. ٹھیک ہو گیا. مبتدا اور خبر ایک جملے کی بتا دیجئے، باقی پھر ہم اس کو رہنے دیں اوکے. گے. ابن حامدin مبتدا بنے گا مرکب اضافی ہو کے، اور ہوں فی العراقی شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے. یہ ابن محمد دن ہے، پہلے آپ نے ابن حامد دن کہہ دیا. جی. ٹھیک ہے. ابن آپ نے محمد. بس یہ دیکھا کہ یہاں ابنو میں اس کا حمزۃ الوصل جو حمزہ ہے وہ پڑھا جا رہا ہے، اور جی اگلے میں نہیں پڑھا جا رہا. جی جی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ پڑھ لیجئے دونوں جملے، ویسے جملے فعلیاں ہیں، ریڈنگ کر لیجئے. یہ دوسرا والا استاد. جی. اوکے. خرج خرج خرجبن خرجبن خرج ابن. الطبیبی ہوں خرجبن الطبیبی من ہوں البیت. گھر سے یہ طبیب کون ہے؟ کا بیٹا، ابن طبیبی، طبیب ڈاکٹر کا بیٹا. ڈاکٹر کا اور من گھر سے البیتی کا کیا نکلا. ترجمہ کریں گے؟ ڈاکٹر کا گھر بیٹا سے. گھر سے نکلا. جی. ٹھیک ہے. اگلا کیجئے. ذهب ذهب ابن ذهب ابن التاجری الى ہوں السوق. ہوں تاجر ابن کا تاجر کیا ہے؟ ابن تاجر کا تاجر کیا بیٹا ہے؟ ٹھیک ہے. السو کی مارکیٹ مارکیٹ سے. یہ کیا ہے؟ کون سا حرف ہے؟ حرف جارہ. اور اس کے بعد آنے والا اسم مجرور ہو گیا. مجرور الى السوق. ٹھیک ہے. جی یہ بھی فعل ہے اور یہ بھی فعل ہے. تو ابھی ہم جی. اس کو نہیں پڑھا، تو اس لیے آپ لوگ اس سے کنفیوز مت ہوئیے گا. تاجر کا بیٹا بازار گیا. گیا. ٹھیک ہے. جی جی. اچھا، اگلا کیجئے. اسم المہندسی فیصل واسم الطبیب مسعود. فیصل نہیں، انجینئر کا بیٹا، انجینئر اسمو ہے نا؟ اسمو. انجینئر کا نام فیصل ہے اور طبیب کا نام، ڈاکٹر کا نام مسعود ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے پڑھیے. مسم الرجلی ہوں آدمی کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. آگے پڑھیے. ابن من انت. ہوں تم کس کے بیٹے ہو؟ ٹھیک ہے. آگے انا پڑھیے. ابن الوزیری. میں ہوں وزیر کا بیٹا ہوں. تو ہم نے جو پیچھے پڑھا تھا وہی اس کی ساری پریکٹس جو ہے وہ یہاں پر ہم نے دوبارہ سے دیکھ لی. جی الحمدللہ، ٹھیک. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے کیا، اور ماشاءاللہ بہت اچھا آپ لوگوں نے پیک کر لیا. ہمارے لیسن 5 کمپلیٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم جملہ اگلا لیسن کریں گے، لیسن جزاک اللہ خیر استاد. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام میم علیکم ورحمۃ اللہ اب وبرکاتہ. میم اب کلاس فرائیڈے کو نہیں ہوگی، صرف منڈے کو ہوگی کیا؟ میم کلاس فرائیڈے کو بھی ہوگی یا منڈے کی ہی تھی آج؟